थैंक यू। नमस्कार। जैसे नमस्कार सर। कि 30 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें अभी, और हमारा HR सेल which is headed by Meenakshi and supported by Akhilesh Jha, they have been organizing various training programs for all the cadres of the university. ये तो ग्रुप ए कैडर का है। इसके अलावा हमने ग्रुप बी में सेक्शन ऑफिसर्स का भी करा, हम ग्रुप सी लेवल तक भी गए, हमने लाइब्रेरी का भी अभी प्रोग्राम करा, लैब्स के भी प्रोग्राम करे। So many a times a question comes कि why do we organize such training programs? What is the importance of training programs? एक इम्पोर्टेंस तो सबसे बड़ी सबके जहन में रहती है, वो यही रहती है कि हम लोगों की एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है फॉर प्रमोशन कि you should have attended some training programs of 4 weeks duration, 2 weeks duration, 3 weeks duration, or 1 week duration, which would add in your biodata, and you would get ultimately benefited for getting a promotion. But when we organize this training program, we organize this training program with a broader perspective. We all know that the training is a crucial aspect of personal and professional development. पर्सनल भी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दोनों ट्रेनिंग के थ्रू ही हम ले सकते हैं। तो उसके कई पैरामीटर्स हम लोगों के जहन में आते हैं कि व्हाट आर दोज पैरामीटर्स कि दैट व्हाई वी फील दैट ट्रेनिंग इज नेसेसरी। तो जो पहला पैरामीटर हमारे जहन में आता है वो आता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कि when we attend these training programs, when we organize these training programs, क्योंकि टीचिंग लर्निंग एक प्रोसेस है जो हमेशा आपको भी अपग्रेड करता है। when you teach and when you learn also, तब भी आप अपग्रेड होते हैं। तो टीचिंग लर्निंग में everybody is benefited, ओवरऑल डेवलपमेंट सबका ही होता है। so there is an improved performance. The first parameter is that the improved performance of everyone, that you develop new skills and knowledge. हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कई फैसेट्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, स्टेट है, फाइनेंस है, एग्जामिनेशन है, एकेडमिक्स है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, हमारे और स्टैट्यूटरी लॉज की रिक्वायरमेंट है विच डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, कैसे वो डील करते हैं डिपार्टमेंट्स के साथ, फैकल्टीज के साथ। सो when we organize these training programs, we try to cover all the aspects, major aspects of the administration, including finance. So what we see is that it develops the overall skill and knowledge of everyone. And when the skills and knowledge is developed, ultimately it is going to help everyone. It is going to help the individual for the improved job performance. It is going to help the institution also, is that when the individuals are trained, their productivity is increased, there is less burden, there is less tension, and ultimately both the institution as well as employees benefited. The second is that enhanced career opportunities are there. आप में से कई लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे, कई लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार होंगे, कई डिप्टी रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। कि when we see this training, we see it as an investment. We see it as an investment in the individuals. How we invest. When we provide a training, when we develop all the individuals, then what we see is that there are better career prospects for everyone. आप लोग कई चीजें सीखते हैं, समझते हैं। हम जैसे अपने काम कर रहे होते हैं, अपने काम के दायरे में इतने लिमिटेड होते हैं काम करते वक्त कि हम दूसरा कोई काम नया लेना नहीं चाहते, क्योंकि एक सेफ जोन में हम काम कर रहे हैं। हमें लगता है जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, हम नई जगह पे जाएंगे, हमें सीखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा जो काम कर रहे हैं वो करते रहे। इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी हम बहुत ज्यादा तैयार नहीं होते। लेकिन जब आप लोग एक ओवरऑल सिस्टम के पर्सपेक्टिव को देखते हो, व्हेन यू अंडरस्टैंड द वेरियस पर्सपेक्टिव, देन इट एनहांसेस योर career opportunities also. There are many institutions who are looking for persons at level of 5400, at level of 6600. मैं पुराने पे लेवल की बात करूं, पे लेवल जो आज की डेट में पे लेवल 10, पे लेवल 11, पे लेवल 12 है, they look for the persons as the head of those institutions. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार है पे लेवल 14 में, but many organizations, the head of the institutions are at the pay level 12 also. So when we see that the persons are being trained, when they gain knowledge, they look for better career prospects also.
ultimately it helps in the promotions of the individuals. And when the person is considered for promotion based on the knowledge and the skills, then definitely high pay scales are also applicable for such employees. The third is increasing the confidence of the employees. This is very important aspect of the training. See how to increase the confidence of the employees. I have seen, I also was a teacher before shifting to administration. But over a period of time, I tried learning various aspects. I tried learning rules. I tried reading rules. And then over a period of time, I could see the confidence within me. So that is the another aspect we look for all the employees who attend these training programs, is that we are somewhere increasing their confidence by way of these training programs. आप आज के नजरिए में भी जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, you would see that many aspects you might have heard, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एक्चुअल विजिबिलिटी समझने में बड़ा फर्क है. रूल को याद करना आसान है, लेकिन उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एक्चुअल विजिबिलिटी रूल की वो देखने में बड़ा फर्क आता है. सो देन यू सी दिस थिंग, सो दैट इंक्रीजेस द इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस, एंड व्हेन द कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, डेफिनेटली द सेल्फ एस्टीम इंक्रीजेस. ये आज की डेट में आप लोग जाते हो, आपके ऑफिसर आपसे कोई चीज पूछते हैं, जब आप उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, डेफिनेटली आपका मोरल थोड़ा डाउन होता है और थोड़ा सा बुरा भी लगता है. ये चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे जो भी हो. लेकिन जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम के एस्पेक्ट्स को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, सो दैट इंक्रीजेस योर सेल्फ एस्टीम ऑल्सो कि यस, यू हैव द नॉलेज ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू कुड कन्विंस योर हायर अथॉरिटीज. देन इट ऑल्सो एनेबल्स यू टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस. आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, नई चीजों को सीखेंगे. दिस वुड एनेबल यू टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस ऑल्सो, कि क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, क्योंकि न्यू चैलेंजेस ट्रांसफर पोस्टिंग से भी आते हैं. और मैंने ये चीज बहुत ज्यादा देखी है कि सिस्टम के अंदर पीपल आर नॉट विलिंग टू मूव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द डिपार्टमेंट, जबकि आइडियली विद इन 3 years ए पर्सन शुड मूव ऑन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अदर डिपार्टमेंट, क्योंकि उससे आप लोगों की भी अडेप्टेबिलिटी सिस्टम की तरफ बढ़ती है कि यू सी न्यू थिंग्स, यू लर्न न्यू थिंग्स, तो मोनोटोनस लाइफ नहीं रहती. It gives you challenges also. And then at the same time, when you take on new challenges, you tackle some complex tasks also. किस तरीके से नई नई चीजें जो आपके सामने आती हैं, आप उन चीजों को किस तरीके से टैकल कर पाओगे. This is the concept of the increased confidence by providing this training. Then the next aspect we feel is in the training is the better decision making. That we feel that the training provides knowledge and skills. So when you have knowledge, when you have skills about a topic, when you have everything with you, then you are better informed about the decisions you are taking. You are better informed about the decisions you are making. When you are informed about the decisions which you are making, this is the better outcome and reduce the errors in your functioning also. So that is the another aspect, that better decision making, maybe training helps everyone. Then adaptability and flexibility. We say that the training helps in adapting the changing circumstances. कि आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी कहीं और ट्रांसफर होती है, कुछ और सर्कमस्टांसेस आपके साथ आते हैं, but when you are attending these training programs, it is giving you the confidence so you can better adapt to the new environments. Then by virtue of training only, when you would have some skills, other training skills also with you in the training programs, it would give you the opportunity to learn new technologies also. आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि everything is changing very fast. So when you learn during the training, you can implement the new technologies also. It adds to your work environment also. आप अपना अच्छा काम करेंगे, नई चीजें आप सीख पाएंगे, आप अपने कोलीग्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे तरीके से बता पाएंगे. इट अल्टीमेटली गिव्स यू अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट आल्सो, एंड देन इट मेक्स यू मोर फ्लेक्सिबल एंड रेजिलिएंट आल्सो टुवर्ड्स द सिस्टम. कि आपके पास
Adaptability आई, you are more flexible, you are more keen to learn new things, you can move on to other directions also. So then it is that you are more flexible and you are more resilient towards the system. Then I have seen that there are certain compliances and regulatory requirements also which are to be fulfilled in a time bound manner. जैसे जीएसटी आया, जीएसटी के हमारे को जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है, जीएसटी के टाइमली हमारे को 11 तारीख तक एक रिटर्न फाइल करनी है, 27 तारीख तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे रिटर्न फाइल करनी होती है. सो देयर आर सेवरल compliances which are to be made until unless you are aware कि क्या क्या compliances आपको देने हैं. जैसे आपके हायरिंग ऑफ मैन पावर वाले हैं, खासतौर से जो हमारे कॉलेजेस हैं, ये जरूर इसको देखें कि जो हायरिंग ऑफ मैन पावर को लेके आपके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या क्या हैं, वो आप जरूर इसमें समझने की कोशिश करिएगा, जो आपको इन टाइम बाउंड मैनर आपको पूरे करने हैं. तो it helps you in learning new things, that what are the new laws which are applicable. It would help you learning new regulations also, what are the new standards which are available before you. Then it gives you the confidence to be more aware of the compliance and the other regulatory appointments. Then comes innovation and creativity. We see that the training fosters the innovation and creativity. How it creates innovation and creativity is that when you do certain things, when you learn new laws, when you learn new systems, then you have new ideas to implement it in a more flexible manner. You have more ideas to deal with a problem. You are more flexible to give a solution to the employees. So that is the another aspect of the training, that it adds to innovation and creativity. The most important aspect is team building and collaboration. आज आप सब लोग अभी दूर दूर हैं, लेकिन मीनाक्षी जी आप लोगों से एक लास्ट में एक काम करवाती है कि आप लोगों से एक फीडबैक लेती है, आपसे एक रिपोर्ट मांगती है, डेली की भी रिपोर्ट लेती है, वीकली भी रिपोर्ट लेगी, फिर उसके बाद जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा फुल डिटेल रिपोर्ट लेगी, उस पर डिस्कस करेगी. सो दैट गिव्स यू अनदर कॉन्फिडेंस ऑफ टीम बिल्डिंग का, कि आप एक दूसरे से जब कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, इट गिव्स यू अनदर कॉन्फिडेंस ऑफ टीम बिल्डिंग ऑल्सो. टीम बिल्डिंग में we bring together everyone, we promote collaboration amongst the employees, how to collaborate with each other. We see the aspect of the communication between the two employees, how the employees communicate with each other. And then there is a shared purpose also, that what is the purpose with which we are together. हो सकता है मीनाक्षी आपके साथ एक टॉपिक शेयर करे और दो जनों को कहे कि आप दोनों इस टॉपिक पे अपना प्रेजेंटेशन दो. एंड व्हेन यू वर्क टुगेदर, देन यू प्रेजेंट योर व्यूज टू योर एम्प्लॉइज आल्सो, टू योर कोलीग्स आल्सो. दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग. देन पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. When we see the training, it leads to personal growth and development. It is going to enable the individuals to achieve their goals and also to realize their potential. You would achieve your goals and realize your potential. You would be more sharpened to apply the rules, to apply more regulations, and you would be able to justify yourself that you are much above the average potentials which others would see in you. So this is going to realize your potential also, that you can do many things in the system. And then there is a competitive advantage also which training provides. What is that competitive advantage? That every institution, every officer wants to attract and retain the best employees. So attract and retaining the best employees is that the employees who are more amenable, the employees who are more aware of the skills, employees who are more adjacent, or they are ready to adjust with the other requirements also. So these things are coming by way of training also. But these are the few aspects we could identify that why training is essential. But when we see all these things, collaboration की मैंने आपसे बात करी, टीम बिल्डिंग की आपसे मैंने बात करी, आपकी नॉलेज की मैंने आपसे बात करी, और इन सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो शेयरिंग की है, कि आप जो भी चीज गेन करें आप शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ. जितना आप नॉलेज को शेयर करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी. क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने अपने कोलीग्स के साथ बहुत सारी चीजें सीखी हैं. आई सिट विद देम, आई डिस्कस विद देम, उनसे बात करता हूं, उनसे चीज समझता हूं, उनके व्यूज देखता हूं, एंड देन जॉइंटली वी रीच टू अ डिसीजन. So when we are collective in making a decision, then definitely the system is better. So this was a brief address of mine. I wish all the best to all the participants for this training program.
And I'm thankful to Meenakshi, who is the Joint Registrar Human Resource also, that for taking these initiatives and organizing these training programs from time to time. My best wishes. Any questions, any concerns are there, I'm ready to answer that. Would anybody like to ask something from our registrar, sir? कोई कुछ पूछना चाहता है, बात करना चाह रहा है, ये आपको मौका मिल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात करने का। कई हमारी पॉलिसीज हो सकती है, कोई और चीजें हो सकती है, इनके एक्सपीरियंस से आप कुछ जान सकते हैं। इफ एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम, ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। संजय ध्यानी हियर सर फ्रॉम गढ़वाल। कैसे हो? कैसे सर? It's great to see you, sir. Thank you. बताओ। I have worked with sir in so many committees, and I'm thankful that Delhi University has organized such a fruitful event, sir. And it is my pleasure that I'm joining as a trainee in this event. So I hope that under your stewardship, definitely this workshop and training will benefit the participants, sir. I just say all the best wishes to the DU and all the participants, sir. Thank you. Thank you, Sanjay. Thank you. We also look for कि अगर आप लोगों के किसी के कोई कंसर्न हो कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक, कोई स्पेसिफिक एरिया जिसके बारे में कोई भी एम्प्लॉय जानना चाहता हो, so that we can highlight those things to the organizers and we can arrange the speakers for those things. We have very good speakers with us in our own team as joint registrars who are there with us. You would interact with them. अगर ऐसा फिर भी कोई आपका टॉपिक ऐसा हो which you specifically would like to know about it, please do let Meenakshi know, and then she would arrange all those things whatever is required for success of this training program. Definitely, सर इस कंटेक्स्ट में आपको बताना चाहूंगी, हमने अपना जो शेड्यूल वर्कआउट किया उसमें कुछ हमने ब्लैंक्स इसी पर्पस के लिए छोड़े हैं कि ये लोग कुछ चाहेंगे स्पेसिफिक तो हम विल अरेंज फॉर दैट। विल शेयर द शेड्यूल विथ यू शॉर्टली इन द व्हाट्सएप ग्रुप। और कोई कुछ कहना चाहेगा, सर से बात करना चाहेगा? सर आई थिंक बहुत सबने आपको सुना एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस। अपने इस कीमती जो भी आपका कमिटमेंट्स है, मैं जानती हूँ, हम लोग जानते हैं कि आपके कमिटमेंट। आरती ने हैंड रेज किया है। अच्छा अच्छा, आरती प्लीज आप बोलिए, अनम्यूट करिए उनको। आरती, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। आरती अपने आप को आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट योरसेल्फ बोलो। बैकएंड से इसको अनम्यूट कर दो। नहीं सर, अनम्यूट कैंडिडेट को खुद करना पड़ता है। कर सकते हैं हम लोग, हम खाली बोल सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? या Thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir, for a great start of this 4-week skill enhancement program. सर ने बड़े अच्छे से एनलाइटन किया, टीम बिल्डिंग, शेयरिंग नॉलेज, एनहेंसिंग कॉन्फिडेंस और कोलेब्रेशन की बात की। दैट्स रियली ग्रेट। इट विल बी ग्रेट अगर ये जो हमारा 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेशन होना है एनपीएस के इन कंपैरिजन टू एनपीएस, जो अब आपका हमारा जो ओपीएस, एनपीएस और जो थर्ड वन है, इन सब का भी हम थोड़ा सा सेशन में रख लें, दैट वुड बी ग्रेट। वो हमारा हो जाएगा, यूपीएस का यूनिफाइड पेंशन स्कीम ज्यादा है, वो तो इंडिविजुअल्स का रखा है हमने सेशन रखा है। ठीक है मैम, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आरती ने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया, कितने बढ़िया से आपने सारी चीजें हमें बताई। ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सर, आपने इतनी बढ़िया से बताया। और इसके जो कई बार हम लोग बस ये सोच के जाते हैं कि चलो काम करने से छुट्टी मिलेगी,
चलो मजे आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन ये जो मजे का समय भी होता है ना, जो हम अपने आप को नहीं दे पाते हैं इस ट्रेनिंग में, वो जो मजे का समय है वो भी हमारे माइंड के जो सर ने एक बात कही कि रियलाइज करने को मदद करता है पोटेंशियल को। तो ये जो माइंड के सेल्स है जब वो रिलैक्स्ड होते हैं तो सबसे ज्यादा आपके पोटेंशियल को वो दर्शाते हैं। तो सर ने जो ये बात, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग के बारे में की। एक ये इन्वेस्टमेंट है। हम लोग सोचते हैं खाली मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट होता है, जब हम यहाँ आके अपना समय देते हैं। समय का इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं मानती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई चीज नहीं खरीद सकती, कोई धन नहीं खरीद सकता। तो सर ने जो ये इन्वेस्टमेंट की बात की, सच में हमारा इन्हांसमेंट करता है पर्सनालिटी, ट्रेनिंग का कराने वालों का भी, ट्रेनिंग करने वालों का भी। और एक बात जो मैं आपको कहना चाहूंगी, आप सब लोग सफिशिएंटली सीनियर पोजीशन पे हैं। ट्रेनी आपको कहना उचित नहीं होगा, ये स्टेक होल्डर्स हैं आप, जो हम सब मिलकर के यहाँ पे सीखेंगे और सिखाएंगे एक दूसरे को। और जो सर ने रियलाइज करने की पोटेंशियल बताई, यहाँ आके आपको समझ में आता है, जब आप प्रेजेंटेशंस करेंगे तब आपको पता चलेगा अरे मेरे में ये पोटेंशियल भी था। हनुमान जी में क्या शक्ति थी जब उन्होंने समुद्र को पार किया था, उन्हें खुद नहीं पता था। तो यू विल रियलाइज ऑल दिस। थैंक यू सर फॉर elaborating on such an important aspect of our professional working, which is very important. कई बार हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, और मैं देखती हूँ अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन पार्टिसिपेशन में स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि ऑन करके लोग माइंड ऑफ कर देते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू कीप देयर माइंड ऑन एंड ईयर्स ऑन। भले ही कुछ भी कर रहे हैं तब भी थोड़ा इधर ध्यान देंगे। तो जो सर ने जो इश्यूज हाईलाइट किए आपके पर्सनालिटी में, जरूर ये आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच सर अगेन। Thank you. Thank you very much, and all the best to all the participants. थैंक यू। Thank you. Take care. हमारे को पिन कर दो, हमारे को पिन कर दो। आप पार्टिसिपेंट है या ऐसे ही ठंडे से? एक्चुअली सर हम मैंने ही रखी हुई है। हाँ, ठीक। हेलो हेलो, कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. या सो लास्ट सर सेशन। सॉरी सर, सर रिक्वेस्ट है सर, एक बार थोड़ा सा प्लीज रिपीट कर देंगे सर, ये लास्ट वाला सर। लास्ट वाला ना, ठीक है। जी सर। ये तो 6 पे कमीशन बेस है, हमने 7 पे कमीशन के पे एक एग्जाम्पल है इसका, वो भी हम रिपीट करेंगे, वो भी देखेंगे अभी हम। ओके, नाउ देखिए, नाउ इस केस में क्या था कि 23 नवंबर को 2007 को दिस जेंटलमैन गॉट द प्रमोशन फ्रॉम द लोअर पोस्ट टू द हायर पोस्ट। ओके, सो फ्रॉम द लोअर पोस्ट टू द हायर पोस्ट 23 नवंबर है, 07 है 2007, मतलब इट इज द करेंसी ऑफ द 6 पे कमीशन। 6 पे कमीशन में जो इंक्रीमेंट था वो था 1 जुलाई को। तो इसका मतलब है कि दिस जेंटलमैन ऑलरेडी एंजॉयड द इंक्रीमेंट। ओके, एनुअल इंक्रीमेंट उसे मिल चुका। तो जब एनुअल इंक्रीमेंट मिल चुका, आफ्टर द 4 मंथ ही इज गेटिंग द प्रमोशन, सो डेफिनेटली ही विल ऑप्ट द पे फिक्सेशन ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन ओनली। ठीक है जी। तो इस डेट को ही उसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो लोअर पोस्ट पर था 15,000 पर, हायर पोस्ट पर उसका पे बढ़ के हो जाएगा 15,580। 4,200 उसका लोअर गेट पे था, हायर गेट पे मिल जाएगा सो 4,800। ओके, सो दिस इज द पे फिक्सेशन ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन। ओके, में सर 15,580 का वो था क्या सर सेल में? नहीं नहीं नहीं, 15,000 प्लस 4,200 का 3% इंक्रीमेंट लेंगे ना आप। अच्छा जी सर। इसका बेसिकली 6 पे कमीशन में तो इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना पड़ता था जी। तो 15,000 प्लस 4,200 कितना हो गया? 19,200। 19,200 पर आप 3% लगाएंगे
जो 3% जो आता है आपका वो 580 रुपये आता है, 580। जी तो सर। लोअर पोस्ट पे आप 580 को ऐड करेंगे तो आपको 15,580 उसका प्रमोशन पर पे बन जाएगा। ठीक है जी जी। सर। 4800 गेट पे हो गया। अच्छा, ये फिर हायर पोस्ट इसने एंजॉय करी नवंबर 07 से लेकर अक्टूबर 08 तक। ओके, नवंबर 07 से अक्टूबर 08 तक ये हायर पोस्ट पर रहा। अच्छा, जैसे ही बीच में 1 जुलाई आएगा तो उसको एक एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक जी है, सर। जो कि प्रमोशन पोस्ट पर है ये, तो इंक्रीमेंट मिलके उसका पे बन जाता है 16,200 प्लस 4800। ओके, ये उसे पे स्केल मिलता रहेगा कब तक, जब तक कि उसका रिवर्जन नहीं होता। जी ओके, इंसिडेंटली उसका रिवर्जन हो जाता है 17 अक्टूबर 2008 को। जो रिवर्जन हो जाएगा तो ही विल गेट द पे इन द लोअर पोस्ट। अब जी सर। पे इन द लोअर पोस्ट उसकी कितनी होगी, पे इन द लोअर पोस्ट कितनी होगी, क्योंकि हायर पोस्ट तो उसे नहीं मिलेगी, अब हायर पोस्ट का तो गेट पे नहीं मिलेगा। जी सो कितनी होगी कि यदि, तो वो उतनी होगी कि नॉर्मली हैड ही हैज नॉट बीन प्रमोटेड, मतलब कि यदि मान लो इसका प्रमोशन नहीं होता तो जी फिर इसके लोअर पोस्ट पर इसको इंक्रीमेंट मिलता 15,580। जो जी यहां था ना, एक इंक्रीमेंट मिला था, वो इंक्रीमेंट यहां तो चला गया हायर पोस्ट में, यहां पर उसको भी लोअर पोस्ट में मिलता है इंक्रीमेंट ये वाला। ओके, जी प्लस सर। 4200 ये इंक्रीमेंट मिलता। तो रिवर्जन के टाइम पर उसे केवल इतना ही पे मिलेगी, जी 15,500 प्लस 4200। ओके। जी अच्छा, उसके बाद में अक्टूबर के बाद में आफ्टर 5 मंथ इन द मार्च ही गॉट द प्रमोशन। जैसे ही प्रमोशन मिलेगा इसको, सत्रह आप दस बोल। दो हजार आठ को सर, ये आप बोले कि वो प्रमोशन से पहले वाला मिलेगा। हाँ 17 अक्टूबर को सर, 17 अक्टूबर 2008 को। जी जी। हाँ, तो ये 15,580 प्लस 4200 नहीं ना सर, 15,000 प्लस 4200 ना सर। नहीं नहीं, 15,000 तो ठीक था उसका, लेकिन 15,000 के बाद में उसे एक इंक्रीमेंट मिलता ना यहाँ पे उसको, एनुअल जी इंक्रीमेंट। जी सर। उसको विक्टिमाइज तो नहीं करेंगे ना हम, भाई विक्टिमाइज तो इतना ही कर दिया हमने कि उसको हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट पे लिया है। लेकिन जी यदि मान लो ये अपनी लोअर पोस्ट पे कंटिन्यू रहा होता तो जी 15,000 के बाद में उसे इंक्रीमेंट यहाँ देते हैं 15,580 पर। जी सर। तो 15,580 प्लस 4200 रेड मार्क में लिखा है, इट इज द नोशनल, मतलब कि ये मिला नहीं है उसे, मिलेगा उसे अच्छा। इस डेट, यहां मिला जी क्योंकि यहां रिवर्जन हो गया उसका। ठीक है सर। ठीक है, इसका ये रिवर्जन हो गया, अब यहाँ पे फिर प्रमोशन हो गया 21 मार्च को। जी जब प्रमोशन हो जाएगा तो दिस जेंटलमैन इज एलिजिबल टू वन इंक्रीमेंट फॉर द प्रमोशन। जी ठीक है, अब इंक्रीमेंट यदि हम इस पर कैलकुलेट करते हैं, इसका 3% निकालते हैं, तो इसका हम्म, 3% इंक्रीमेंट आता है 600 रुपीज का। जी सर। और 600 हम इसमें ऐड कर दें, तो 600 यदि ऐड कर देते हैं तो 16,180 बन जाता है। तो जी प्रमोशन सर। के टाइम पर इसकी सैलरी बनती है 16,180 प्लस 4800। ठीक है, लेकिन जी यहाँ पे सर। एक कैच ही आ जाता है, क्योंकि प्रमोशन पे इसकी सैलरी 16,180 प्लस 4800 मिली, लेकिन इसका कैच ये है कि इससे पहले ये 16,200 तो ऑलरेडी दे चुका है, हम्म। तो हम इसको 16,200 मिनिमम ही देंगे। तो इसकी 16,200 प्लस 48 पर ही हम इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि ये पहले 16,200 पर रह चुका है। जी ओके, अब बात आती है कि इसका नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट। अब होता क्या है कि नॉर्मल सेंस में तो नेक्स्ट ऑफ डेट ऑफ इंक्रीमेंट आपका 6 महीने के बाद लगेगा, ये अगली 2010 में मिलेगा, यहाँ पे जुलाई 2010 में लगेगा। ठीक है, जी लेकिन हुआ क्या था कि इसने 4800 पर ये ऑलरेडी काम कर चुका है मोर देन 6 मंथ्स। क्यों? 4800 पर पहले तो ये काम किया इसने यहां से लेके यहां तक। हम्म, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, दिस पीरियड इज मोर देन 3 मंथ। हम्म, और फिर ये मार्च से लेके जुलाई तक, दिस पीरियड इज आल्सो मोर देन 3 मंथ। तो जी ही हैज ऑलरेडी वर्कड फॉर मोर देन 6 मंथ्स इन द गेट पे ऑफ द 4800। तो चूंकि जी इसका गेट पे ऑफ 4800 मोर देन 6 मंथ्स हो गया, तो इमीडिएटली इसका जो भी जुलाई डेट आएगी 21 मार्च के बाद में, 1 जुलाई जो 2009 में आ जाएगी, तो उसे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक जी है, सर। बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सर्व फॉर 6 मोर देन 6 मंथ ऑन द हायर पोस्ट।
इसका मतलब सर पास्ट में भी जो 4800 ग्रेड पे वो रहा वो 3 महीना, और ये इस अभी जो रहा प्रमोशन के हाँ, दोबारा ये होने दोनों के बाद, ये पीरियड काउंट हो जाएगा। दोनों को काउंट करेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। सेम एक नेक्स्ट भी है इसमें, सेम हमारा 7th पे कमीशन से, ये रहा, इस आप देख लीजिए। इस केस में क्या है कि इसका प्रमोशन होता है 1 अगस्त 2019 को। 1 अगस्त 2019 को प्रमोशन होता है फ्रॉम द लोअर पोस्ट पे लेवल 8 टू लेवल 9। ठीक है, लेवल 8 टू लेवल 9। ओके, इसमें भी क्या होगा कि हमने जो भी इसको बेनिफिट दिया 58,600 से, इसका यहां पे इंक्रीमेंट देने के बाद में 61,500 पर हमने इसकी सैलरी फिक्स करते हैं ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन था इसका 1 अगस्त 2019। ओके, तो ये तनख्वाह उसको, ये जो सैलरी है, ही विल एंजॉय अप टू द नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट। 30/6/2020 तक उसे इतना ही पे मिलता रहेगा, 61,500। 1 जुलाई आएगा तो एक इंक्रीमेंट मिलेगा इसको। तो पहले था सेल 6 पर, अब आ गया ये सेल 7 पर, 61,000 से 500। ओके, लेकिन 1 अक्टूबर को हमने इसको रिवर्ट कर दिया। जैसे ही हम 1 अक्टूबर को रिवर्ट करेंगे तो रिवर्ट करने पर ये हायर पोस्ट तो उसको लूज करनी पड़ेगी अपनी, हायर पोस्ट लूज करनी पड़ेगी, तो हम रिवर्जन पे इसको लोअर पोस्ट का ही पे देंगे। अब लोअर पोस्ट का पे यदि नॉर्मल सेंस में हम देखते हैं कि यदि मान लो इसका प्रमोशन नहीं हुआ होता तो 58,600 जो सेल 8 का था, इसका नेक्स्ट रेट ऑफ इंक्रीमेंट को सेल 9 मिलेगा। सेल 9 कितना होता है 60,400। अब चूंकि 1 जुलाई को मिलेगा ये 60,500, तो 1 जुलाई के बाद में 1 अक्टूबर आता है तो इस डेट को भी इसका 60,400 मिलेगा। ओके, सिमिलरली ही गेट द प्रमोशन ऑन द 1 अप्रैल 21। 1 अप्रैल 21 को प्रमोशन मिल गया, 1 अप्रैल 21 को प्रमोशन मिल गया, तो अब इसको हमें एक इंक्रीमेंट देंगे। सॉरी, थोड़ा नीचे करो, कैसे करेंगे नीचे इसको, ये हटाओ ना। 1 अप्रैल 21 को प्रमोशन दिया इसको, ये था सेल 9 में। सेल 9 में प्रमोशन देंगे एक इंक्रीमेंट तो आएगा सेल 10 में। सेल 10 पे कितना आ गया 62,200। ओके, 62,200 ये एक इंक्रीमेंट के बाद आता है। जब एक इंक्रीमेंट के बाद सेल 10 आया तो इसके क्लोजेस्ट जो भी हमारा सेल होगा इधर पे लेवल 9 पे हम वो देंगे। पे लेवल 9 में जो क्लोजेस्ट सेल है वो 63,300 है सेल 7, तो उसको वो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट। नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट में अगेन हमने उसको जुलाई 21 दिखाया, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 6 महीने काम कर चुका होगा सेल 7 में। सेल 7 में इसने यहां काम किया, सेल 7 में इसने यहां काम किया, तो कुल मिला के सिंस ही हैज वर्कड मोर देन द 6 मंथ, सो हिज डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इज अगेन 1 जुलाई 2021। मतलब इमीडिएटली आफ्टर द प्रमोशन हिज डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट विल कम। ठीक है, ये जो पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, दोनों आइडेंटिकल है। द डिफरेंस इज द प्रीवियस वन वाज लीडिंग टू 6 CPC एंड इट इज फॉर द 7 CPC। आप एक बार चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इज इट ओके? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स?
हेलो. Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay, thank you. Now, the next slide is based on the FR22B. This FR22B, this is relating to the pay fixation when an employee join from one organization to another organization. Suppose in one organization, he has already enjoyed the sufficient seniority. Sufficient seniority matlab ki now in the first organization itself, he is getting the higher pay scale. He is getting the higher pay scale. ठीक है? Next organization he joined on the direct recruitment post, but in higher post. So how his pay shall be fixed? Like sometimes we say that the pay is protected if you go from the one organization to another organization. जैसे कि एग्जाम्पल हम कहें कि सपोज इन सम कॉलेज सम सेक्शन ऑफिसर इज वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स अबाउट द 20 years. ठीक है, तो इन 20 years so he is get the मतलब he may be getting the higher pay to the tune of 65,000 rupees about. And suppose on direct recruitment basis he joined the assistant registrar position in some university. So minimum of the assistant registrar is the 56,000. So the issue is come ki whether his salary fixed to the 56,000 or the salary which he was getting in the S section officer 65,000. ठीक है, so normally हम कहते हैं कि now the salary is always protected if we go from the one organization to another organization. Now these cases are decided as per the FR22B. ठीक है, तो इन केस में क्या होता है कि जो सेक्शन ऑफिसर अपने या सैलरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जो सैलरी ज्वाइन करते हैं, वो जो प्रीवियस में जो सैलरी रिसीव करते हैं, जो पे फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड द प्रिजम्पटिव पे. ओके, तो इशू क्या है कि यहाँ पे इशू ये आता है कि सपोज वो सेक्शन ऑफिसर ही वाज गेटिंग द 65,000 एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, द मिनिमम इज द 56,000 समथिंग. ठीक, सो ड्यूरिंग द प्रोबेशन we have the rule position that during the probation whatever the salary he is getting in the section officer that shall be remain protected. वो presumptive pay है, वो इतना उसे मिलता रहेगा during the probation. Once the probation is completed, then his pay shall be fixed as if he has come on the promotion basis. मतलब कि since he has come from the lower post to the higher post, so on completion of the probation we will grant him one increment. मतलब कि जब तक उसका प्रमोशन नहीं होता है, जब तक वो प्रोबेशन पर है, तब तक तो वो अपनी जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो सैलरी थी एज ए सेक्शन ऑफिसर, वो उसे मिलती रहेगी. और जैसे ही उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, सो वी विल रीफिक्स हिज पे एज इफ ही इज बीइंग प्रमोटेड फ्रॉम द सेक्शन ऑफिसर टू द असिस्टेंट रजिस्ट्रार. ओके, so during the probation, whatever he get, it is called as the presumptive pay. जैसे कि एग्जांपल है हमारा ये, an officer drawing the 64,100 in the pay level 8 with date of next increment 1st July joined a new job on direct ticket appointment in the pay level 10 on 1st April 2019. He underwent on probation for 2 years and was confirmed on 31/3/2021 fixed his pay during this period. ठीक है, now this is the example for the technical engineering service group. मतलब previously he was in the group B service. ठीक है, he was working in the pay level 8. Now this gentleman joined the another organization in group A level with pay level 10 on direct recruitment basis. He has come from the direct recruitment basis. Okay, so अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में 31/3/2021 तक उसने 1 अप्रैल 19 तक उसने अपना काम किया. तो अप टू द 1st April 2019 he was getting the pay of 64,100. ओके, 1 अप्रैल को उसने ज्वाइन करता है न्यू ऑर्गेनाइजेशन. ओके, न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जो मिनिमम पे है दैट इज द पे लेवल 10, दैट इज अबाउट द 56,000. ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए उसके बाकी जितने भी कुलिक्स हैं दे वुड बी गेटिंग द 56,000. बट सिंस ही हैज कम फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस, ही वाज ऑलरेडी गेटिंग द 64,100. ठीक है,
So during the probation, minimum this much shall be protected. Now, this is the cell 13 of the pay level 8. This is the cell 13 of the pay level 8. उसकी पे कितनी थी? 64,100. चूंकि वो पे लेवल 10 में आ गया है, तो इसका क्लोजेस्ट जो भी अमाउंट, जो भी फिगर है, दैट शैल बी गिवन टू द ऑफिसर ड्यूरिंग हिज प्रोबेशन. तो ड्यूरिंग द प्रोबेशन ही विल गेट द 65,000 rupees in the sale 6. In the sale 6. Okay. Now next year he get the increment. 1 अप्रैल को 19 को ज्वाइन किया था उसने. ओके. नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा 1 जुलाई 2019. नाउ इस पर्टिकुलर पे पर तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका बनेगा नहीं. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसने ज्वाइन ही अप्रैल 19 को किया है. तो अप्रैल 19 को ज्वाइन किया है, तो जुलाई 19 में तो इंक्रीमेंट बनेगा नहीं उसका. लेकिन क्या है कि ही इज अंडर द प्रोबेशन. अंडर द प्रोबेशन हिज प्रिजम्पटिव पे इज प्रोटेक्टेड. प्रिजम्पटिव पे क्या है कि जो उसके उस ऑर्गेनाइजेशन में बनती. सो ये क्या था? सेल 13 में था. यहां पर तो ये सेल 13 में था, तो 1 जुलाई को आता है सेल 14 में, क्योंकि यहां तो उसका एनुअल इंक्रीमेंट मिलता ना. 2018 में उसका 6400 है, 64,100 सेल 13 में है. तो जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा, वो 2018 के बाद में 2019 आएगा, तो ही विल गेट द एनुअल इंक्रीमेंट. एनुअल इंक्रीमेंट इज सेल 13 टू सेल 14. सो एनुअल इंक्रीमेंट बिकम्स विद द एनुअल इंक्रीमेंट his pay shall become the 66,000. तो 66,000 का corresponding, this is the presumptive pay. This इसका corresponding in the pay level 10 is to be ensured. So 66,000 का जो respective जो pay level है, this is the 67,000. So immediately after the 2 months of joining or 3 months of joining, his pay is enhanced from the 65,000 to 67,000. Okay. Now आफ्टर दैट 1 जुलाई 2019 के बाद में 1 जुलाई 20 आ जाती है. तो 1 जुलाई 20 आती है, तो अगेन इसका प्रेजेंटिव पे इज टू बी फिक्स्ड. नाउ इसका अपना नॉर्मल प्रमोशन होता सेल नॉर्मल इंक्रीमेंट सेल 14 टू सेल 15. सेल 14 टू सेल 15. नाउ दिस सेल बी द नेक्स्ट पे. इसका जो क्लोजेस्ट है, दैट इज द 69,000 इन द सेल लेवल सेल 8. सो ड्यूरिंग द प्रोबेशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस अमाउंट इज डिसाइडेड एज पर द प्रीजेम्पटिव पे. और जैसे ये कंफर्मेशन हो जाता है इसका 1 अप्रैल 21 को, कंफर्मेशन के टाइम पर ही इज ट्रीटेड एज इफ ही हैज गॉट द प्रमोशन फ्रॉम हेयर टू हेयर. मतलब प्रमोशन फ्रॉम हेयर टू हेयर मतलब कि हिज पे इज फिक्स्ड एज पर FR 22A1. मतलब कि दिस जेंटलमैन इज एलिजिबल टू रिसीव 1 इंक्रीमेंट. 1 इंक्रीमेंट कहां से? यहां से. तो इसका इंक्रीमेंट कहां हो गया? 16 पर, मतलब 1 अप्रैल को. वी हैव नॉट वेट till the annual increment. Now 15 to 16 इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 70,000. अब 70,000 के रेस्पेक्टिव जो भी सेल आएगी यहां पर, 70,000 के रेस्पेक्टिव सेल इज द 71,000. सो नाउ हिज सैलरी इज फिक्स्ड हेयर फर्स्ट टाइम इन द पे लेवल 10. दिस इज द 17,000 इन द सेल 9. दिस shall be his pay after the completion of the probation. इस सिंपल कैलकुलेशन को ही हम कहते हैं कि नाउ योर पे इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड व्हेन वी गो फ्रॉम द वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. तो आप जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, और यदि आप हायर पोस्ट अज्यूम करते हैं, तो आपको एक इंक्रीमेंट की एडमिसिबिलिटी आती है. लेकिन एडमिसिबिलिटी तभी आती है वंस यू कंप्लीट द प्रोबेशन. और यदि आप सेम लेवल पोस्ट में जाएंगे, तो यू डू नॉट गेट एनी ऑफ द इंक्रीमेंट. ठीक है Sir, one clarification, sir. या Sir, now the person's pay has been fixed as on 1/4/2021. Can we calculate his increment on 1/7/2021 also? ना अब इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फिक्स्ड दिस पे हियर. अब इसका जो इंक्रीमेंट मिलेगा नॉट बिफोर द 6 मंथ, नॉट बिफोर द 6 मंथ, मतलब कि नाउ ही विल गेट द इंक्रीमेंट ऑफ 1 जनवरी 22. 22, or can we make it 1st January 2022, sir? Can we? नहीं 1 जनवरी 22 आएगा ना. अब तो वंस वी हैव फिक्स्ड इट हियर, तो Yes, नाउ द sir. डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इज द 1 जनवरी 22 Okay. after the completion of not less than 6 months period. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. ठीक है.
नो, यस, अब हम केस जो डिस्कस कर रहे हैं, इट इज द केस फॉर द रीएम्प्लॉयमेंट। रीएम्प्लॉयमेंट केस बहुत सारे होते हैं, पर्टिकुलरली दिस इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डिफेंस ऑफिसर। इन द केस ऑफ डिफेंस ऑफिसर, मतलब मेजोरिटी ऑफ द ऑफिसर और मेजोरिटी ऑफ देयर स्टाफ, दे गेट द रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 50 years or 55 years, बिफोर द 55 years or 50 years। और मतलब particularly their cadre progression is like that कि most of the officer used to leave the organization before attaining the age of superannuation। मतलब 60 years से पहले पहले लोग नौकरी छोड़ देते हैं, कुछ 55 से पहले छोड़ देते हैं, 50 से पहले छोड़ देते हैं। और चूंकि पेंशन केवल डिफेंस में ही है, अब तो वो ऑलरेडी पेंशन लेते रहते हुए होते हैं। पेंशन लेते लेते they seek the another appointment and join the civilian establishment। So their condition is situation is different। Situation different like that कि now they are getting the full salary from the government service and as well as they are getting the pension also। So उसके लिए भी गवर्नमेंट की रूल पोजीशन है कि how the salary of the re-employed pensioner is fixed। ये डिफेंस के केस में, सिविलियन केस में भी बहुत सारे ऐसे केस हो सकते हैं कि जैसे हम में से, आप में से भी, कि सपोज आई क्विट माय सर्विस एज जॉइंट रजिस्ट्रार, आई विल गेट द पेंशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, एंड सिंस आई एम नॉट कंप्लीटेड द 60 years of age, आई मे जॉइन एज ए फैकल्टी इन सम अदर इंस्टीट्यूशन। एज ए फैकल्टी मिल जाता है तो एज ए फैकल्टी आई विल गेट द सैलरी, एज from the university I will get the pension also। So in this case, how the salary is fixed in the another organization, in the new organization। So इसमें हमारे पास जो रूल पोजीशन है, that has been decided by the Ministry of Finance, उन्होंने दो कैटेगरी डिसाइड की हैं। दो कैटेगरी में, एक कैटेगरी ये है कि if the retirement is before 55 and the retirement is after 55, केवल दो कैटेगरी, before 55 and after the 55। before 55 भी, after 55 तो कैटेगरी में यूनिफॉर्मिटी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। जो बिफोर 55 है उसमें दो कैटेगरी बना दी उन्होंने। विद इन द बिफोर 55 देयर आर द टू कैटेगरी। नंबर वन कैटेगरी कि इफ द पर्सन इज रिटायर्ड फ्रॉम द ग्रुप डी सी डी पोस्ट, और सेकंड कैटेगरी इफ द पर्सन इज रिटायर्ड फ्रॉम द ग्रुप ए पोस्ट। ओके, दो तरह की हमारी कैटेगरी है। तो हम एक, हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में ये है कि द पर्सन इज रिटायर्ड बिफोर द एज ऑफ 55। इफ पर्सन इज रिटायर्ड बिफोर द एज ऑफ 55, ठीक है, ही इज गेटिंग द पेंशन एंड ही जॉइन द अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस केस में क्या करता है, बेसिकली सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट रूल पोजीशन ये है कि यदि कोई भी ग्रुप बी या ग्रुप सी या ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद, मतलब लीव, मतलब पेंशन यहां से लेने के बाद में कोई भी दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है, तो दूसरी नौकरी का जो उसका जो सैलरी जो फिक्स होगी, ही शैल बी फिक्स्ड एट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट। जो मिनिमम जो पे है उसे फिक्स होगा, ठीक है। उस पर उसके सारे बेनिफिट मिलेंगे, मतलब उसी पे पे मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एंड द पर्सन इज आल्सो एलिजिबल टू रिसीव द पेंशन एंड द डीएनएस रिलीफ इन हिज प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। मतलब एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि यदि कोई भी व्यक्ति ग्रुप ए से नीचे की पोस्ट, मतलब ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी को से पेंशन लेता है और तब नई नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसे पुरानी पेंशन का प्लस डीएनएस रिलीफ वो भी एंजॉय करेगा वो, और साथ ही साथ नई पोस्ट का जो पे और डीए और एचआरए जो भी जितने बेनिफिट है वो भी उसे एंजॉय करता रहेगा। लेकिन जो नई जो पोस्ट होगी उस पोस्ट पे ही शैल बी फिक्स्ड एट द मिनिमम पे ऑफ दैट पर्टिकुलर पे स्केल, ठीक है। उस समय हम कंसीडरेशन ये नहीं देखेंगे कि भाई वो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा पे ले रहा था, बहुत ज्यादा पे ले रहा हो, बिल्कुल ले रहा होगा, लेकिन नई जब सैलरी ज्वाइन, नई जब पोस्ट ज्वाइन करेगा तो ही विल प्लेस एट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल। जैसे कि हमारा क्वेश्चन, ये हमारा जो एग्जाम्पल है, ये ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड फ्रॉम ए ग्रुप सी पोस्ट, द पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम द ग्रुप सी पोस्ट एट द एज ऑफ 50 years। 50 years मतलब कि बिलो द कैटेगरी ऑफ द 55।
At the age of retirement, he was doing the pay of 12,500 in the payment 2 and a gate pay of the 2,400. मतलब उसने यहां से रिटायरमेंट लिया कि 12,500 द पे थी, उसकी गेट पे था 2,400. द पेंशन ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 7,415. उसे पेंशन मिलती है इतनी. He is reemployed in a civil post in the same payment with the gate pay of 2,800. Fix his pay and the effect on pension and the DNS relief. So basically उसने जो ज्वाइन किया है 2,800 की पोस्ट पर ज्वाइन किया है, रिटायर्ड हुआ था ये 2,400 से. तो 2,800 पर चूंकि नई पोस्ट ज्वाइन की है तो 2,800 गेट पर जो भी मिनिमम पे गवर्नमेंट की फिक्स है उस पर ही इसकी पे फिक्स होगी. तो ही विल गेट 2,800 प्लस द मिनिमम पे ऑफ द मिनिमम पे एप्लीकेबल फॉर द 2,800. मतलब एज ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब यदि जैसे नया कोई बच्चा आता है वो ज्वाइन करता है, नई सैलरी, नई नौकरी, उसे जितना पे मिलेगा उसे वो उतनी ही पे मिलेगी, पे प्लस गेट पे. और चूंकि उसकी पेंशन इतनी थी 7,550, ये उसे कंटिन्यू मिलती रहेगी और इसके पास डीएनएस रिलीफ भी उसे मिलता रहेगा. मतलब ही विल एंजॉय बोथ द थिंग, पेंशन प्लस डीएनएस एंड पे विद डीए आल्सो. मतलब जो 2,800 की जो मिनिमम जो पे है, इट इज द 8,560. सो ही विल गेट द 8,560 एज द पे प्लस 2,800. ये उसका पे फिक्स हो जाएगा और इस पर उसको सब डीए, एचआरए, वट एवर द बेनिफिट्स आर अवेलेबल, ही विल गेट ऑल द बेनिफिट्स. और उसके साथ साथ ही विल गेट हिज पेंशन आल्सो. चूंकि उसे पेंशन मिल रही है तो मतलब दिस पेंशन इज टोल्ड इज कॉल्ड एज द इग्नोर्ड, कि मतलब वी विल फुल्ली इग्नोर हिज पेंशन. मतलब हम देखेंगे ही नहीं कि उसकी पेंशन कितना मिल रहा है. दैट पेंशन इज द फुल्ली इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ पे फिक्सेशन. ओके, मतलब गवर्नमेंट टर्मिनोलॉजी में ये है कि इफ द पर्सन इज रिटायरिंग फ्रॉम द ग्रुप बी पोजीशन एंड जॉइन द अनदर ऑर्गेनाइजेशन, सो हिज पेंशन इज फुल्ली इग्नोर्ड, हिज पेंशन इज फुल्ली इग्नोर्ड, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ द पे फिक्सेशन. सो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल होते हैं कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन है वो अपनी पेंशन भी एंजॉय करते हैं, उस पर उसने डीएनएस रिलीफ भी एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ यदि नई और नौकरी ज्वाइन करते हैं तो वो उसको वहां भी उसे फुल सैलरी मिलती है. लेकिन फुल सैलरी ऐसे ही मिलती है कि एज इफ दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर कैरियर. ओके, सो ये कैटेगरी है कि इफ द पर्सन इज रिटायर्ड फ्रॉम द एज ऑफ 55 ईयर्स. और ये दो कैटेगरी है कि इफ द पर्सन इज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी सी डी. ठीक है, लेकिन अब सेकंड कैटेगरी इसमें आती है कि इफ द पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम द ग्रुप ए पोस्ट. मतलब कि 55 से पहले रिटायरमेंट है लेकिन ग्रुप ए पोस्ट से रिटायर्ड है. ठीक है, वो केस थोड़ा डिफरेंट है. उस केस में क्या किया है इन्होंने, सरकार ने क्या किया है कि उसमें उसकी पे प्रोटेक्ट की है कि भैया जो भी वो पे ले रहा था पहले एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, he will continue to get the same pay. लेकिन his pension shall not be ignored. उसकी जितनी भी पेंशन है, सपोज उसकी पेंशन बनती है 30,000, तो 30,000 में मतलब कि ओनली 4,000 रुपीज इज इग्नोर्ड. मतलब कि 30,000 पेंशन थी उसकी, 4,000 उसकी इग्नोर की जाएगी. 30 - 4 26,000. तो इसका मतलब है कि हम उसको 26,000 रुपीज नहीं देंगे. ये In this case, the entire pension and the pension benefits are not ignored for the pay fixation. मतलब कि इसका जितना भी पेंशन है हम इससे इग्नोर नहीं करेंगे. हमें ध्यान रखेंगे कि उसे पेंशन मिलनी है तो ये जितना भी उसका अमाउंट बैठता है उसमें उतना पेंशन का अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा. And the initial basic pay of the re-employed shall be fixed at the same stage as the last basic pay drawn before the retirement. मतलब उसकी पे प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी उसकी पे पहले मिल रही थी वो प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन पेंशन इग्नोर नहीं करेंगे. However, it shall be granted the gate pay of the re-employed post. In all these cases, the non-ignorable part of the pension shall be reduced from the pay so fixed
However, in these cases, the first 4,000 of the pension drawn is ignored and the remaining amount of the pension is taken into account. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आपको। ये एक कर्नल who retired with basic pay of 61,700, बेसिक पे मतलब 67,700, मतलब ग्रेड पे था उसका 8700, अब पे थी उसकी 53,000, 53,000 प्लस 8700 इज द 61,000 विद बेसिक पेंशन इतनी। उससे पहले इतना तनख्वाह मिल रही थी, सैलरी, पेंशन मिली उसकी 3200, is re-employed as deputy secretary in an organization with grade pay of 7600। कर्नल साहब 87 ग्रेड पे पर काम कर रहे थे, वहां से रिटायरमेंट लेकर एज ए डिप्टी सेक्रेटरी 7600 पर ज्वाइन किया, ठीक है। उनकी पेंशन थी, उनकी पेंशन ले रहे हैं 32,000 रुपीज, ठीक है। सो अच्छा, ये जो कर्नल साहब हैं, ही गॉट द रिटायरमेंट बिफोर द एज ऑफ 55, ओके। सो अब इसकी पेंशन कैसे, मतलब सॉरी से पे कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इनका जो पे है 61,700 विच ही वाज गेटिंग बिफोर रिटायरमेंट, इट शैल बी प्रोटेक्टेड, इतना उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो उसकी पे कैसे फिक्स होगी कि 61,700 में तो चूंकि गेट पे भी इंक्लूड है, अब गेट पे रहेगी इसकी 7600, तो इसका मतलब है कि पे प्लस गेट पे, पे प्लस गेट पे हम 61,700 उसे देंगे, ओके। नाउ in this case on re-employment his basic pay will continue 61,700, तो 61,700 उसकी बेसिक पे बनी रहेगी। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे इसका कि गेट पे तो देंगे 7600 और रिमेनिंग देंगे उसकी पे, तो 61,700 उसका हमारा पे फिक्स की जाएगी, ठीक है। अब चूंकि उसका पेंशन भी है, तो पेंशन इज नॉट, उसका जो नॉन एग्रो जो पेंशन है, पेंशन थी इसकी 32,000, ओके। तो 32,000 में से केवल 4,000 इज इग्नोर्ड, इग्नोर्ड मतलब कि नॉन इग्नोरेबल पेंशन इज द 28,000, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बेसिक पे तो हमारी बनती है ये वाली 54,100 प्लस 7600, मतलब कि वही पुरानी वाली 61,700, 61,700 पर उसे सारे बेनिफिट देंगे, डीए का भी देंगे, एचआरए भी देंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देंगे, वॉट एवर एडमिशन, वी विल रिलीज एवरीथिंग, वी विल रिलीज एवरीथिंग ऑन द बेसिक पे ऑफ 61,700। लेकिन जितना भी टोटल आता है उस टोटल से माइनस ऑफ पेंशन 28,000 करेंगे। जितनी भी सैलरी आती है यहाँ पर, सपोज ये सैलरी कुल मिला के 1 लाख रुपए आती है, तो 1 लाख में से चूंकि पेंशन मिल रही है उसे 32,000 की, तो 4,000 रुपए माफ करते हुए उसे 1 लाख में से हम 28,000 उसे कम देंगे, मतलब वी विल रिलीज ओनली द 72,000। और इसके साथ साथ दिस द ऑफिसर विल नॉट गेट एनी डीएनएस रिलीफ ऑन द पेंशन, उसे डीएनएस रिलीफ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह के केस बहुत आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, और हमारे पास में बहुत सारे कोलिग्स ऐसे भी हैं कि who got the retirement from the colonel position, lieutenant colonel position, and they are now serving as a deputy registrar position, joint registrar position in the university, or like the registrar also, ठीक है। But this case is applicable when the officer or any employee get the retirement before the age of 55 years. हाँ सर, इस केस में उसके जो पेंशन वाले डिपार्टमेंट है सर, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना सर, ये ज्वाइन कर लिए हैं यहाँ, तो उनको डियरनेस लीव मत देखिए, दीजिए। आप इन्फॉर्म करते हैं तो ठीक है, वरना तो ये तो इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बैंक को इन्फॉर्म करें कि होता क्या है कि उसे दोनों चीज मिलनी है ना, डीएनएस भी डीए भी, तो इंडिविजुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ना खुद बैंक को लिख के दे कि नाउ ही इज गेटिंग द डीए ऑन हिज सैलरी, सो उसका डीआर ना दिया जाए, ठीक है। अच्छी बात तो यही है कि जब उसकी पे आप फिक्स करते हैं तो यू सेंड वन कॉपी टू इट्स प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। सर, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था सर कि ये पहले से 61,700 इसको मिल रहा था सर पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ जी। अभी सर ये 7600 ग्रेड पे ज्वाइन किया,
नए ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ हाँ जी। तो इसका बेसिक पे सर हम 54,100 कैसे किए सर? ये 54,000 नहीं किया हमने। हमने कहा है कि इसका जो बेसिक पे था, इट सेल रिमेन प्रोटेक्टेड। जी ठीक है। अब 61,700 इसका बेसिक पे था, तो बेसिक पे जी इसका 61,700 ही रहेगा, क्योंकि बेसिक पे जी। प्रोटेक्ट, पे की प्रोटेक्ट करने की बात नहीं करता, वो बेसिक पे प्रोटेक्ट करने की बात करता है। बेसिक पे अच्छा इन द 6 CPC इज द पे प्लस ग्रेड पे। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब सर इसका जो 7600 ग्रेड पे का मिनिमम पे नहीं आना है? नहीं नहीं, मिनिमम पे नहीं आना, क्योंकि देखो मिनिमम पे आना था वो हमारा पहला वाला केस था ग्रुप बी सी डी वाले पे। जी जी सर। उसमें क्या था, उसमें द पर्सन वाज एंजॉयिंग पेंशन प्लस डीएनएस लीव कंप्लीटली, सब जी चीज है। यहां पे क्या है कि पेंशन हम इग्नोर नहीं कर रहे उसकी, हम उसको जी पूरा बेनिफिट दे रहे हैं पास्ट पास्ट बेसिक पे का। लेकिन जी पास्ट बेसिक पे का पे ही सब चीज हम उसे देंगे, डीए भी देंगे, एचआर भी देंगे, 61,700 पे देंगे, लेकिन जी। पेंशन नहीं देंगे, पेंशन का पार्ट डिडक्ट कर लेंगे। तो यदि तो सर मान लो यहाँ पे इस, हाँ 7600 बोलिए। ग्रेड पे वाले का सर बेसिक तो अलग होता है ना सर? आपका जो, 7600। हाँ इसमें ये पेक्युलर कंडीशन आ गई, चलो 6 सीपीसी में रहा होगा इस तरह का कि 37,000 पर खत्म हो जाता है। जी ठीक है ना, ये 37,000, लेकिन यदि मान लो हम 7 CPC की बात करें तो इसमें इस तरह प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये एग्जाम्पल था कि जो उसने दिया था एग्जाम्पल कि भाई ये यहाँ 15 इसको बेसिक पे ही प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक एग्जाम्पल गिवन इन दैट पर्टिकुलर बुक, मतलब जो वो निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। आप बिल्कुल जी सही कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि ना, क्योंकि ये तो पेमेंट ही 37,000 में खत्म हो जाता है, 39,000 में। जी लेकिन साउंड पे कमीशन में इस तरह का इशू नहीं आएगा। साउंड पे कमीशन में तो क्या होगा कि जितना भी बेसिक पे है जी दैट वी कंटिन्यू इन ऑल द पे लेवल्स। ठीक है ना। जी तो जी बेसिक पे सर। उसके प्रोटेक्ट करनी है हमें, बेसिक पे प्रोटेक्ट करके आप सब बेनिफिट देने हैं। वो जितना पेंशन ले रहा था उस पेंशन में से ओनली 4,000 इट इज द इन द 6 पे कमीशन। जी 7 पे सर। कमीशन में इट इज रेज टू द 15,000। तो 15,000 इज टू बी ignored। हियर अच्छा, द आप ओनली आप 4,000 15,000 इज इग्नोर ignored। करना है सर? अब 15,000 इग्नोर करना पड़ेगा 7 पे कमीशन में। ठीक है ना, जी क्योंकि पेंशन भी खूब ज्यादा मिलती है उनको। अब हो सकता है कि पेंशन ही में भी गेटिंग द 90,000 और 1 लाख रुपीज पेंशन। जी ठीक है, तो 1 लाख में 50,000 डिडक्ट कर देंगे तो 85,000। तो जितना भी ये ग्रॉस सम बनता है उस ग्रॉस सम से हम 85,000 डिडक्ट कर लेंगे। ओके। और उसके बाद उसका सैलरी देंगे सर? उसके बाद सैलरी देंगे उसका, द पर्सन विल नॉट गेट एनी डिनर रिलीफ ऑन द पेंशन। ठीक है जी ना। सर, क्लियर हो गया सर। हाँ, लेकिन ये केस तभी है कि व्हेन द ऑफिसर गेट द रिटायरमेंट बिफोर द 55। जी सर। ठीक है ना। ठीक। अब जो नेक्स्ट केस है, इफ द पर्सन गेट द रिटायरमेंट आफ्टर 55, इस आफ्टर 55 में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, आइदर वन रिटायर फ्रॉम द ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कहीं से कोई कंसिडरेशन नहीं है, एवरीबडी हैज बीन ट्रीटेड इक्वली। ठीक है। इस केस में क्या है कि आपकी जो पूरी जो प्रीवियस जो पे है दैट शैल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है। एंड कंप्लीट पेंशन इज नॉन इग्नोरेबल, मतलब सारी पेंशन डिडक्ट कर ली जाएगी जैसे कि यह है। A government servant after attaining the age of 55 years retired from the group B post. At the time of retirement, he was drawing the pay of 23,500 with gate pay of 4,800. Pension he was getting the 14,000. After retirement, he was re-employed in a civil post in the payment 2 with gate pay of 5,400. How will you fix his pay? अब इसमें क्या है कि इस केस में जो उसकी बेसिक पे थी 23,500 प्लस 4,800, ये पूरी पूरी प्रोटेक्ट की जाएगी, लेकिन उसकी पेंशन कंप्लीटली डिडक्ट कर ली जाएगी, वो चाहे ग्रुप ए से हो, बी से हो, सी से हो, डी से हो। इस जेंटलमैन की जो बेसिक पे थी 28,300 थी, ये पूरी पूरी प्रोटेक्ट की जाएगी 28,300। 28,300 हमने प्रोटेक्ट कर दी उसकी। नई पोस्ट जो ज्वाइन की है दैट इज द गेट पे ऑफ द 5,400, तो पे उसकी होगी 22,900। 22,900 पे गेट पे दिस बेसिक पे इज प्रोटेक्टेड। ठीक है।
इस 28,000 पे सारे ही इसको बेनिफिट कैलकुलेट किए जाएंगे, जितने भी कैलकुलेट होंगे। जो भी ग्रॉस सम आएगा उस ग्रॉस सम से उसकी पेंशन डिडक्ट कर ली जाएगी, क्योंकि पेंशन उसकी 14,000 थी तो 14,000 डिडक्ट कर ली जाएगी। और ही विल नॉट गेट एनी डीएनएस रिलीफ ऑन द पेंशन आल्सो, फिर पेंशन पे भी उसे कोई डीएनएस रिलीफ नहीं मिलेगा। And this is the situation across all the group A, B, C, D. तो जो भी बेनिफिट था वो बेनिफिट बिफोर द एज ऑफ 55 था। आफ्टर द 55 देयर इज नो बेनिफिट। द ओनली थिंग इज ही विल कंटिन्यू टू गेट द सैलरी वट एवर ही वॉज गेटिंग बिफोर द रिटायरमेंट, ठीक है, बट हिज कंप्लीट पेंशन इज नॉन इग्नोरेबल, मतलब जो भी पेंशन का उसे अमाउंट मिलना था वो वहां से डिडक्ट कर लिया जाएगा। और नंबर 1, नंबर 2, यदि वो डीए लेता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से तो ही विल नॉट गेट एनी डीएनएस रिलीफ ऑन द पेंशन आल्सो। सर कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें डियरनेस रिलीफ दिया भी जा सकता हो पिछले केस के अलावा सर? नहीं नहीं, डीएनएस रिलीफ केवल हम तभी देते हैं, केवल ग्रुप बी सी डी को, ग्रुप बी सी डी को, इफ द पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम द ग्रुप बी सी डी, रिटायर्ड फ्रॉम द ग्रुप बी सी डी अब बिफोर द एज ऑफ 55 ईयर्स, बस। और कोई एग्जाम नहीं, और कोई भी केस में नहीं सर? और कोई केस में तो मेरी नॉलेज में नहीं है। सर मीनवाइल अगर डिटेक्ट होता है कि एम्प्लॉय ले रहा है सर वहां से भी पेंशन और उसमें डियरनेस रिलीफ भी ले रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं सर हम लोग? और उसमें एलिजिबल नहीं है वो जी, तो एलिजिबल नहीं है तो डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप एक तो रिकवर करोगे, डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट करोगे उसने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब सर ये एम्प्लॉय की भी जिम्मेवारी है कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, बताए। एम्प्लॉय की जिम्मेदारी हर चीज की, एम्प्लॉय की जिम्मेदारी ये है कि अपना पे फिक्सेशन खुद कैलकुलेट करे, और उसे लगता है कि मुझे ज्यादा से एक गलती, मतलब गलती से मुझे 1,000 2,000 ज्यादा मिलने हैं, तो खुद इन्फॉर्म करे एडमिन को जाकर कि भाई मेरी आपने पेंशन मतलब सैलरी गलत फिक्स की है, इसे ये फिक्स की जाए, ठीक है ना। वो जो एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज मे बी कम्स इन द केस ऑफ द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कि चलिए उन्हें पता नहीं है, एक ग्रुप डी एम्प्लॉय है, ग्रुप सी एम्प्लॉय है, दे आर नॉट फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल साइड, तो उन्हें नहीं पता कि हाउ देयर पे इज फिक्स्ड। लेकिन यदि मान लो मिनिस्ट्रियल साइड से है, आपका कोई असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर है, उसकी पे गलती से हायर साइड में फिक्स हो जाती है, तो ऑफिस के साथ साथ उस एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी है कि वो बताए कि भाई आपने मेरी सैलरी ज्यादा फिक्स कर दी है। ओके सर। और सर इनके रिटायरमेंट जब हो जाएगा सर, यहाँ सुपर इन्वेट जब हो जाएंगे तब क्या केस होगा सर? तब उसका वो डीएनएस रिलीफ वापस मिल जाएगा उसको, पिछले ऑर्गेनाइजेशन वाला? हाँ हाँ मिलेगा उसको। और हमारे यहाँ सर? हमारे यहाँ तो भाई हमारे यहाँ तो हम ये देखेंगे ना कि भाई वो 50 बिफोर 55 ईयर्स रिटायर्ड है या आफ्टर 55 ईयर्स रिटायर्ड है। यदि आफ्टर 55 ईयर रिटायर्ड है तो ही विल गेट ओनली द डीए, ही विल नॉट गेट डीआर। 55 साल के बाद में उसे केवल एक ही मिलना है डीएनएस अलाउंस, यदि हमसे ले रहा है तो डीए मिलेगा, और जैसे ही डीएल में लेना बंद कर देगा तो डीआर मिलेगा, ठीक है। 55 से पहले यदि ऑफिस एज ए ऑफिसर रिटायर्ड हुआ है तो भी उसे केवल एक ही डीए मिलेगा। हाँ, यदि मान लो बिलो द ऑफिसर रैंक है, बीसीडी में है, तो ही कैन एंजॉय डीए एज वेल डीआर, लेकिन उस केस में उसका पे प्रोडक्ट नहीं होगा, उस केस में उसे मिनिमम ऑफ द पे ऑफ द पुश दिया जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, इस तरह केस बहुत आते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में। ओके, नाउ तो इफ द थिंग्स इज क्लियर देन वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। यस सर। सर एक क्वेरी है सर, एक्सक्यूज मी सर जी। अभी आपने बताया जैसे कि किसी एम्प्लॉय की गलती से माना पे फिक्सेशन हायर एंड पे हो चुकी है, और एट लेटर स्टेज ये दिखता है कि साहब की इसको ज्यादा मिल गया है, उसको आप रिकवर करने के लिए उसे नोटिस करते हैं या कहते हैं जी, और एम्प्लॉय इस बिना पे मना करता है कि साहब ये तो मेरी गलती नहीं थी, तो कोई पर्टिकुलर रूल पोजीशन है जिसको कोट करके उसको उस रिकवरी के लिए बाध्य किया जा सकता है? नहीं, उसमें तो ऐसा कोई रूल पोजीशन तो नहीं है कि वो, लेकिन बस ये है कि दे विल अपहोल्ड द इंटीग्रिटी,
ओके। अब होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या है? इंटीग्रिटी यही है कि ईमानदारी से आप काम करेंगे ना। तो इंटीग्रिटी तो एक ऐसा वर्ड है ना कि कहीं भी हर जगह फिक्स हो जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आपकी कंडक्ट से भी आती है, इंटीग्रिटी आपकी एफिशिएंसी भी आती है, इंटीग्रिटी आपकी इस बात से भी आती है कि भाई आप कहीं रूल पोजीशन को मोड़ तो नहीं कर रहे अपनी तरफ से। मतलब कि आप कहीं, भाई ये तो इंटीग्रिटी डाउटफुल होगी ना कि इफ द पर्सन पता है कि भाई ही इज एलिजिबल टू रिसीव ओनली द 100 रुपीज, लेकिन गलती से ही इज रिसीविंग द 110, जी सर। तो इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन होता क्या है कि इस केस में हम थोड़े से, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ने गलती कर देते हैं, एडमिन ने गलती कर दी है, तो हम थोड़े से उसमें कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में रहते हैं कि ठीक है बस रिकवर कर लो, छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन जी ये जी। रूल पोजीशन है। जब ये चीजें सरकार उसके पास पहुंचती है, कोर्ट के पास में, तो कोर्ट के पास में एक रफीक मसीह का एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि नहीं, इफ द पर्सन इज गेटिंग द हायर पे इन द लास्ट 5 years और लास्ट 10 years, देन द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिकवर इट। वो तो रिटायरमेंट पे है ना सर, जब सुपरएन्युएशन का टाइम हो। सुपर एजुकेशन के टाइम पे ना, तो आप रिकवर नहीं कर सकते। जी। तब उस समय आप भले ही चाहे कहते रहिए, तो वो फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो आप कोर्ट ने उसके थोड़ा सा एक लीनियंट व्यू लेके हुए डिसीजन दे दिया है। हाँ वही, वो बहुत लोग कोट करते हैं एक्चुअली उसे। हाँ, बहुत लोग कोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत केस होते हैं टीचर्स केस में तो। जी 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 जी, कि जहां पर रिटायरमेंट के टाइम पे पकड़ में आता है कोई ऐसा फिक्सेशन, और एक उसके बाद वो उसे रिटर्न करने से मना कर देते हैं इसी इसी रूलिंग की वजह से। लेकिन जो रूलिंग है दैट देखो, जो भी रूल होता है ना, वो एक पर्टिकुलर केस के लिए होता है। जी ठीक है ना, बिल्कुल, इन उस पर्सन वो तो पर्टिकुलर बिल्कुल। हाँ, नो इट इज, मतलब जजमेंट इन पर्सोना, मतलब उस जी जी, पर्सन से जजमेंट इन होता है। पर्सन हुआ। जी सर। ठीक है ना, या तो वो डीओपीटी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको रूल मान ले, जी देन दे विल इशू नोटिफिकेशन दैट सेम रूल इज एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड। जी जी ठीक है, लेकिन यदि मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई एक रूल है, रफीक मसीह के नाम पर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता रहे कि नहीं नहीं मेरा केस इसमें फॉल होता है, तो आई एम नॉट एलिजिबल टू गिव बैक द कंप्लीट मनी, बट हम्म। दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। जी, जब तक कि उसे कोई कोर्ट वो ना कर दे, हाँ, जब तक कि अपील कोर्ट ना। नहीं, हाँ कोर्ट से अपील ना करे कि रफीक मनी, हाँ इस पर कि ये इक्वली एप्लीकेबल है, तो ना करे। ठीक है, जी जी अदरवाइज बिल्कुल तो रिकवरी इज टू बी अफेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Now it is the case of remuneration of the retired employee receiving pension appointed on the contractual basis। ये भी आज की डेट में बहुत पॉपुलर केस है कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन जो आफ्टर द रिटायरमेंट ना, दे अपॉइंट द कंसल्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द पीरियड अप टू द 60 years ऑफ एज। ठीक है, तो उसमें भी बुला दो उसको, अखिलेश झा को, तो उसमें भी गवर्नमेंट के रूल पोजीशन है, डीओपीटी ने निकाला है कि भाई नाउ व्हाट एवर द लास्ट बेसिक पे दे वर ड्रॉइंग, तो उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल फी जो डिसाइड होगी, द लास्ट बेसिक पे माइनस बेसिक पेंशन प्लस द ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो ओनली दिस शैल बी ग्रांटेड टू द पर्सन रीएम्प्लॉयड ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो बेसिक पे क्या होता है, मतलब ये क्या है कि बेसिक पे माइनस बेसिक पेंशन, तो ऑलमोस्ट द बेसिक पे इज प्रोटेक्टेड। बेसिक पे इज प्रोटेक्टेड, प्लस ही गेट द ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो उसे रिटायरमेंट के टाइम पे मिलना था। तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, वो तो दैट इंक्लूड द डीए आल्सो। सो वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस डीए उस समय जो मिलना था, वो कंटिन्यू रहेगा उसका लास्ट बेसिक पे माइनस बेसिक पेंशन। ठीक है, ये तो आपने एग्जाम्पल, अपना रूल भी देखा होगा, पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, ये केस तब के लिए है कि व्हेन द पर्सन इज गेटिंग द पेंशन। अब स्थिति थोड़ी डिफरेंट भी हो गई है, क्योंकि अब नाउ द पर्सन इज रिटायरिंग फ्रॉम द एनपीएस आल्सो। तो एनपीएस के केस में तो क्या है कि वो पेंशन तो उनकी होती नहीं। तो एनपीएस केस में क्या किया गवर्नमेंट ने कि नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक पे, तो उन्होंने कहा है कि नाउ द 70% ऑफ बेसिक पे इज टू बी ग्रांटेड। 70% of the basic pay is to be granted plus the transport allowance. Transport allowance at the time of the employee, at the time of the retirement of the employee. ठीक है, so this is all we have covered considering the different situations for the pay fixation. अभी कोई आपको डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है, तो we can discuss and share to each other.
कोशिश की गई है कि आपके सभी एग्जाम्पल इसमें हम कवर कर लें, लेकिन फिर भी कोई स्पेसिफिक आप कुछ क्वेरीज है तो बताइए। किसी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी है? नाउ द सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन। हम लोग ऑडिबल है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट? हाँ सर, ऑडिबल है Yes, sir. Yes. कोई सर। क्वेरी है? रिक्वेस्ट है सर, इसका पीपीटी सर थोड़ा शेयर करवा दीजिएगा सर। ठीक है, पीपीटी हम शेयर कर देंगे, बट ऐसा है कि नाउ दिस इज द सिंपल गाइडलाइंस ओनली, मतलब जो कि हमने इधर उधर से कॉपी किया है, बट यू कैन नॉट कोट इट नाउ दिस इज द रूल पोजीशन। आपको रूल जी। पोजीशन के लिए ना, आप जब भी अपने नोट्स पे या जो भी अपना जस्टिफाई करेंगे फाइल पर, you have to have the proper rule position from the FRSR side या Ministry of Finance या DOPT rule, or each and every example is given in the Swami how to make pay hand, जो भी हमारी स्वामी रूल बुक है हमारी, जी। ठीक है, हाउ टू पे मेड इजी, उसमें आपको सब तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है ना, वैसे हम शेयर कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको बेसिकली यू कैन नॉट से कि नाउ दिस बिकम द रूल, और यू कैन नॉट, मतलब आपका ये वो नहीं बनेगा एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जस्ट फॉर द योर अंडरस्टैंडिंग ओनली वी विल गिव यू। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून साहब। सर ये टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स के लिए हम अलग से लेंगे सेशन, पे फिक्सेशन का, या हो गया सर ऐसे? नहीं, फैकल्टी मेंबर का इसमें कवर हो जाता है, आपको इशू तो है नहीं। अच्छा। अब फैकल्टी मेंबर से क्या होता है कि नाउ द दे आर एट द विद इन द असिस्टेंट प्रोफेसर, दे आर द पे लेवल 10, पे लेवल 11, पे लेवल 12। ओके, then the 13 जी come from the assistant professor. So जी सर। within the assistant professor, we do not give any increment from the P level 10 to 11, 11 to 12, because it is a simple placement only. It is just like the non-functional upgradation. But they remain assistant professor. They do not assume any higher responsibility. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन में कि देयर पे इज जस्ट प्लेस इन द नेक्स्ट लेवल, दैट्स ऑल। तो वो भी यदि मान लो किसी भी टीचर्स की फैकल्टी की सैलरी 67,000 आती है पे लेवल 10 में, तो पे लेवल 11 पे यदि मान लो उसका प्लेसमेंट है, तो 67,000 के जो भी क्लोजेस्ट अमाउंट आता है वो उसे दे दिया जाएगा। दैट टाइम वी डू नॉट गिव एनी इंक्रीमेंट। बट व्हेन द पर्सन इज appointed as a assistant professor, तो assistant professor में it involve the higher responsibility। higher responsibility मतलब कि now we have to give one increment। so one increment is given at the time of assistant professor, one increment is also given from the assistant professor to the professor। बस this is the only difference। सर मैं ये जो इंक्रीमेंट हम देते हैं ना सर, इंक्रीमेंट 5 PhD होती है और MPhil होती है, उसमें 5 और 3, उसके बारे में जैसे पूछना चाहता हूँ। जैसे हमने कोई रिक्रूट किया और फैकल्टी मेंबर ने ज्वाइन किया, PhD है, तो उनको 5 एडिशनल इंक्रीमेंट देंगे या नहीं देंगे सर? उनका हेड गलत हो गया था सर। देखिए अभी तक हेड गलत हो गया था, 7 CPC पास हो गया था पर हेड गलत हो गया था, मिसलेनियस नहीं लेना था हम लोग का। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट देखिए 7 CPC तक तो रूल बहुत क्लियर था कि नाउ दे आर एंटाइटल्ड फॉर द 5 एडवांस इंक्रीमेंट। ठीक है, लेकिन 6 CPC में जो हमारा यूजीसी रेगुलेशंस है उसकी लैंग्वेज थोड़ा डाउटफुल है। अब डाउटफुल में उसमें कि वेदर दे विल गेट द PhD इंक्रीमेंट और नॉट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग, इसमें बार बार हम यूजीसी से क्लेरिफिकेशन लेते हैं। यूजीसी जो भी क्लेरिफिकेशन देती है, अभी शायद कुछ दिनों पहले दिया है कि इफ द पर्सन इज मतलब इन सर्विस, इन द केस ऑफ इन सर्विस, इफ द पर्सन गॉट द PhD देन ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट द इंक्रीमेंट। लेकिन एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अभी तक उसने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, जहां तक कि मेरी नॉलेज में है। ठीक है, क्योंकि ये जो इशू है फैकल्टी वाला एडवांस इंक्रीमेंट, दिस क्लेरिफिकेशन इज इशूड बाय द यूजीसी ओनली, नॉट फ्रॉम द DOPT साइड और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साइड। ठीक है, अभी तक हम बस वही है। तो यूजीसी जब इशू करेगी, अब यूजीसी में क्या होता है कि नाउ दे हैव द मेजोरिटी ऑफ मेजर स्टेक ऑफ द टीचर्स, और वो आज की डेट में हो सकता है कि ना दें, तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद दे गेट द थिंग्स इन देयर फेवर, हो सकता है उन्हें मिल जाए। ठीक है, बट इन द केस बोलिए। अभी रिसेंटली यूजीसी से एक लेटर आया है कि यू हैव टू फॉलो द 2 नवंबर 2070 लेटर टू ग्रांट एडवांस इंक्रीमेंट
एंड उसमें उनकी पे में ऑलरेडी इनबिल्ट है दैट हाँ इंक्रीमेंट इज इनबिल्ट इन द पे, सो नीड नॉट टू गिव एडिशनल इंक्रीमेंट, हाँ एडवांस जी, उसमें ये इंक्रीमेंट। नहीं, उसमें ये क्लियर है कि नाउ क्या कहता है वो लेटर की, इट इज एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एट द टाइम ऑफ द हैविंग द पीएचडी ड्यूरिंग द सर्विस आल्सो। अभी डाउटफुल है उसमें भी। नहीं, वो सब उसमें क्लियर कर रहे हैं। नहीं नहीं, जी उसमें जो जी उसमें आप देख लीजिएगा, देखो टीचर से केस में क्या है कि हमें यूजीसी के जो क्लेरिफिकेशन होता है वही फॉलो करना होता है, क्योंकि इसका जो यूजीसी ये इस केस में क्लेरिफिकेशन डीओपीटी का और उसका नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ठीक है ना? जी सर, एट प्रेजेंट हमारे यहाँ भी ये केस था एंड वी आल्सो सीक द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जी एंड द सिमिलरली दे कम्युनिकेटेड विद अस कि चूंकि ये इनबिल्ट है in the हाँ, promotional hierarchy, so it need not to be granted. आपका इट कहना नीड भी नॉट। ठीक है, वो at the time of induction in the service का कहीं पे clarification नहीं है उनका, बट हमने तो उसे रोक ही दिया, इसीलिए रोका है कि जब नहीं, तक आपने ठीक किया वो, क्योंकि फिर अदरवाइज इट वुड हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ एग्जैक्टली रिकवरी। वो फिर हाँ रिकवरी और ये सब करने से बढ़िया है जी कि उसको फिलहाल के जी लिए जी होल्ड पे ही डाल दिया जाए। जी। अब फिर एक इशू और भी है कि इट इज द एडवांस इंक्रीमेंट और एडिशनल इंक्रीमेंट, ये भी एक बड़ा इशू एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। ठीक है ना? नाउ ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी इज गिविंग एज एन एडिशनल इंक्रीमेंट। जी जी जिस दिन पकड़ा जाएगा तो ये भी एक बहुत बड़ा एक हाँ, पॉइंट ऑफ खुल जाएगा। वो ऑडिट पैरा बनता है उसमें बड़ा। और बराबर है, तो उसमें तो और भी ज्यादा लॉस है। ठीक है ना? सर एक और क्वेरी थी। जैसे कोई फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर हमारे यहाँ ज्वाइन किए, वो दूसरे जगह से पेंशन ले रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से, हाँ जी, तो यहाँ हमने उनका पेंशन माइनस करके फिक्स कर दिया, ठीक है ना? सही किया। तो अभी वो एनपीएस में मेंबरशिप ले सकते हैं नहीं, और एनपीएस की पेंशन ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं? देखिए, अब इस तरह के जो केस में अभी तक तो कोई क्लेरिफिकेशन कहीं से आया नहीं है, ना ही तो डीओपीटी की तरफ से मैंने कभी देखा है, ना यूजीसी तरफ से देखा है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जी सर। उस अंडरस्टैंडिंग में ये है कि एनपीएस तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, कोई भी कर सकता है। हाँ, एनपीएस तो जो ही नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकता है, एनपीएस तो अपने पर्सनल लेवल पे हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो आपके यहाँ ज्वाइन करेंगे, और जो तो पेंशन ज्वाइन करेंगे तो एनपीएस में तो हर एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट है कि दे विल गेट द एडिशनल 14% ऑफ द पे प्लस डीए। जी जी सर। भाई 10% उसका भी डिडक्ट करोगे आप, 14% अपना भी कंट्रीब्यूट करोगे, 24% सेल गो टू द पीएफआरडीए। जी मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है, वैसे जैसे हम पेंशनेबल ठीक है ना? जॉब लेकिन पेंशन इज टू बी डिडक्टेड। अच्छा जी, वो पेंशन तो करते हैं सर, हाँ पेंशन डिडक्ट करते हैं। पेंशन कंप्लीट डिडक्ट होगी। जी सर। लास्ट सैलरी लास्ट पे प्रोटेक्टेड रहेगी। यदि मान लो लास्ट पे उसकी जो 2 लाख थी, 2 लाख में सपोज इसकी 80,000 पेंशन थी, तो 2 जी लाख सर। तो उसे हर चीज मिलेगी, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, सब मिलेगा उसको। जी सर। यदि उसकी ग्रॉस 3,000 थी, 3 लाख बैठती है, 3 लाख में से उसका जो पेंशन है 80,000, दैट इज टू बी डिडक्टेड। जी सर। जी सर। और सर वो डीए और डीआर दोनों ले सकते हैं? नहीं डीए नहीं नहीं और नहीं 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 नहीं, उसे केवल एक ही डीए मिलेगा, डीआर नहीं मिलेगा। जी जी सर। जी सर। डीआर नहीं मिलेगा, केवल डीए मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि अब तो यदि मान लो प्रोफेसर आपके पास में आए हैं बिफोर 55, जी सर। तो उसमें पार्ट ऑफ द पेंशन इज इग्नोरेबल। आफ्टर 55 जी आए हैं तो 100% इज नॉन इग्नोरेबल। जी सर। जी सर। तो डीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी ही रहेगी ना सर, हमारी नहीं। हम नहीं, डीआर के बिल्कुल रहेगी, लेकिन सेफ साइड के लिए आप एक लेटर उसको भी भेज दीजिएगा, जो पे फिक्सेशन होता है, तो कॉपी टू सो एंड सो। जी जी सर। जी सर। ओके, ठीक है थैंक यू ना? सर, थैंक यू। जी सर। जी सर एक और क्वेरी है सर। हाँ जी सर एक एसोसिएट प्रोफेसर जो पहले लेवल 13A में थे, जी सर। उनका बेसिक वहाँ पे सेल 10 में था सर, पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। तो किस्मत था लेवल लेवल 13A में हाँ जी, सेल 10 में सर। सेल 10 में जी। जी। अभी सर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एज ए प्रोफेसर लेवल 14 में आए, तो हाँ सिलेक्शन जी कमिटी ने सर उनको 5 प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट दिया FR27 में सर। जी जी। तो सर उसका पे फिक्सेशन कैसे करेंगे सर? उसमें जो है
नहीं, उस केस में तो यही है कि उसकी तो सेल ही तो प्रोटेक्ट, आप तो पहले तो सेल ही प्रोटेक्ट करोगे उसकी, जी। और 5 तो इंक्रीमेंट। मैच्योर इंक्रीमेंट कहाँ से देंगे सर इसको? तो उसके लेवल 14 के मिनिमम बेसिक से मिनिमम से सर, या इसको प्रोटेक्ट करते हुए लेवल 14 में 5 देना है? ये तो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसका तो रिप्लाई आपको यूजिस से ही क्लैरिफिकेशन लेना होगा। नहीं बादल जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से तो जो फर्स्ट पोजीशन पे जिनको सिलेक्शन कमेटी एडवांस इंक्रीमेंट देती है ना, जी सर। तो उसमें तो पे प्रोटेक्शन का सवाल नहीं उठता है, जी क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जब पे ये आपका इंक्रीमेंट्स देती है तो बेसिकली एक तरह से वो पे प्रोटेक्शन के ही बिहाफ में है, याद इधर ही और शी विल गेन इंक्रीमेंट्स या उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। वैसे इसका मतलब जैसे सर कह रहे हैं कि उसमें केस टू केस पे यूजीसी या कोई क्लेरिफिकेशन देगा, जी लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि वो जब सिलेक्शन कमेटी किसी को इंक्रीमेंट दे देती है जी तो इसका मतलब उसका पे पे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब हम उसको एडवांस इंक्रीमेंट दे रहे हैं, एडिशनल इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो दैट एडिशनल इंक्रीमेंट इज गिवन एज द मिनिमम ऑफ द पे ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट। बस यही, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी को लगता है ना कि हाँ ठीक है यार, ये ये बाकी सब ऑलरेडी सीनियर आदमी है, हाँ सर, सीनियर लेकिन आदमी है, यहाँ इसमें केस कुछ ये था एक्स्ट्रा। सर, पार्डन सर, एक केस था यहाँ पे ये कि उनके 5 जो हम सर अगर वहां से मतलब लेवल 14 के मिनिमम से अगर कैलकुलेट कर रहे थे, फिर भी उनका पास्ट वाला जो लेवल 13A में जो बेसिक था सर, उससे भी कम हो रहा था। उससे भी कम हो रहा है, तो फिर तो पे प्रोडक्शन जी उसका उसका उसकी चॉइस ले लो, चॉइस लेके वही उसका। एग्जैक्टली फिर तो ये चॉइस का प्रश्न है ना। हाँ, चॉइस ले लीजिए कि भैया किस तरह से चाहिए आपको, अकॉर्डिंगली यू फिक्स इस पे। बल्कि और थोड़ा सा और रिलीफ देना चाहें तो सिंस ही इज कमिंग फ्रॉम द एसोसिएट प्रोफेसर टू प्रोफेसर, यू कैन ग्रांट 1 इंक्रीमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। इसका मतलब कंफर्मेशन के बाद उनको 6 इंक्रीमेंट दे कंफर्मेशन के सकते बाद ना हैं। आप उसको नहीं नहीं 6 नहीं, कंफर्मेशन के बाद में पहले उसकी अभी तो ड्यूरिंग दिस प्रोबेशन ही विल गेट द प्रोडक्शन ऑफ पे। ठीक है, वंस द प्रोबेशन इज कंप्लीटेड then you can give him 1 additional increment after the confirmation। ठीक है ना, वो आपका एफआर में दिखा हुआ है, फंडामेंटल रूल में। लेकिन ये भी मैंने देखा है अपनी यूनिवर्सिटी में भी और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी कि हम उनको नहीं देते। ठीक है ना। ये हमारे यहाँ भी नहीं देते हैं सर, ये प्रैक्टिस हाँ नहीं जी, है। लेकिन हम नॉन टीचिंग में देते हैं। हाँ, लेकिन टीचिंग में सर अभी तक इस तरह का हमने प्रैक्टिस नहीं फॉलो किया है सर। जी 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 जी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें सिलेक्शन कमेटी एक्चुअली बड़ा अजीब सा हो जाता है सर इसमें, अच्छा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ये भी केवल यूनिवर्सिटी में डिस्कशन है कि यूनिवर्सिटी वाले ही इस तरह के एडवांस इंक्रीमेंट देते हैं, अदरवाइज तो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं नहीं। यूपीएससी, हाँ यूपीएससी इज द मेन रिक्रूटिंग एजेंसी, एसएससी इज द मेन रिक्रूटिंग एजेंसी, दे डू नॉट गिव एनी एडिशनल इंक्रीमेंट। नहीं, इवन सर एक चीज और है सर, उसका कोई बेसिस भी नहीं सिलेक्शन कमेटी अपनी प्रोसीडिंग में देती है कि व्हाई दे आर। हाँ, वो को जस्टिफाई नहीं करते। हाँ, जस्टिफाई नहीं करते। जस्टिफाइड नहीं है तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए केवल ये एक इमेजिनेशन का प्रश्न हो जाता है कि ये उसकी सर्विसेज को देखते हुए दिया गया कि ये लंबी सर्विस से आए हुए हैं, या उनकी काबिलियत इतनी ज्यादा थी, या क्या था। तो ये एक बड़ा डिस्क्रिशन है सर ये। जी 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 जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जहां तक सिलेक्शन कमेटी ने अगर विदाउट एनी रीजनिंग केवल 3 या 4 या 5 इंक्रीमेंट कर दिया है तो वो इन लिeu ऑफ पे प्रोटेक्शन ही माना जाना चाहिए। Either the person enjoy the pay production or the additional increment at the minimum of the pay। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए आपसे बड़ा लाइवली डिस्कशन रहा, आपसे बहुत चीजें सीखने को मिली। नहीं सर, आपसे सीख। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रदीप सर। शुरू में तो भाई हमें लग रहा था कि शायद जो है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। बाद में जिस तरह का इंटरैक्टिव सेशन चला, आई थिंक इट वाज ए फ्रूटफुल वन। और जिस तरह से सर ने एकदम सिंपल वे में जो है विद एग्जांपल क्लियर किया, तो मुझे लगता नहीं किसी के मन में कोई डाउट होगा। और पीपीटी सर कह ही रहे हैं तो हम वो शेयर कर देंगे, तो आप अपने रेफरेंस के लिए उसको जो है कंसल्ट कर सकते हैं, बट नॉट टू बी कोटेड एज ए रूल जो सर ने बताया। और इसी के साथ मैं सर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि सर अपना कीमती समय लेकर हमारे पास आए
और इतना अच्छा सेशन हमारे बीच में उन्होंने दिया है। थैंक Thank यू you, sir. सभी को बहुत बहुत नमस्कार। Thank you, sir. It was